I think we have already started Unit 8. Please come in, please come in. All right, people. Can we start now? Let's talk. Look at the pictures. First page of Unit 8. Look at the pictures. Which foods did you like as a young child? A young child means? A young child means? बहुत अच्छे. कुछ लोग के दिमाग में फट से हिंदी आ रही है. एक छोटा बच्चा एज अ यंग चाइल्ड. और कुछ लोग होते हैं तोते. वो कहेंगे ये कैसा होगा. यंग मतलब तो हम जवान पढ़े हैं. उनके जहन में ना जो बात बैठा दी जाए रटवा करके उसका इमेजिनेशन नहीं काम करता उनका. जैसे अभी हम लोगों ने क्या बोला एज अ यंग चाइल्ड. विच फूड्स डिड यू लाइक एज अ यंग चाइल्ड. जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको कौन सा खाना इसमें से पसंद था. कौन से फूड्स. देयर आर लॉट्स ऑफ फूड्स ऑन दिस पेज. Right? Which foods did you like as a young child? Which foods did you like? We are on page number 62. Okay. Which foods did you like as a young child? And which didn't you like? Which foods did you like as a young child? And which didn't you like? Yeah. You can you can look at the pictures, the photos, which foods. Look at the pictures and talk. Apples. Who liked apples when you were a young child? Did you all like apples? But apple juice, did you like apple juice? I never drank apple juice when I was a young child. Never had the opportunity. Nobody ever gave me apple juice to drink. But I loved apples. But back then, apples were expensive. I don't know, everything has become cheaper now. When I was a young child, everything was expensive for us. Perhaps we were poor. Perhaps we were poor. Things were cheap, but we were poor. We didn't have apples every season, every year, 5, 6 times, 10 times, 20 times. Now we have apples like all the time. Okay, when I was a child, I only ate apples when there were guests at home, on special occasions, like sometimes, rarely, not very often. Okay, B, biscuits. I think all young children love biscuits. All young children love biscuits. You liked them too when you were a young child? Of course, biscuits. Come again, Hasham. You didn't like biscuits. Hasham was different. He didn't like biscuits. He didn't eat biscuits. My Mamaji always brought biscuits whenever he visited us. He brought special biscuits, expensive and tasty biscuits. We waited for him for his biscuits. And then tomatoes. Look at C. I think we all love tomatoes. Tomatoes, the color attracted us, no? Yeah, the color was amazing, the red tomatoes. And we loved those cherry tomatoes as young children. Cherry tomatoes, small size tomatoes, they are fresh and really juicy and tasty. Did you eat raw tomatoes? Yeah, me too. I love them with salt.
I ate tomatoes with salt. And my mom made a very, very special vegetable curry, tasty, sabji of tomatoes. Yeah. Then we have onions. Did you like onions as a child, as a young child? Well, I'll tell you. When I was a young boy, I think now I was not a young child. I was a little, I think I was a teenager, 13, 14, I ate roti with onion rings with a little bit salt, yeah, lemon, and I ate roti with rings, onion rings. You slice them in a different way so that you have rings and you kind of mash. Yeah. So next, strawberries. Hmm. We never ate strawberries. Strawberries were not available in the market when I was a young child. I never saw them even. When I read strawberries in the books, I thought perhaps it was the name of lychee in English. Did you also feel the same? Yeah. We talked to our teachers and they had never seen strawberries. So they used to be confused too. Said, Lagta to lychee hai. But now I know strawberries are different. Do you like strawberries now? Well, I'm not very fond of them. Some strawberries are really sweet, big sized, okay? But a lot of them are not very sweet. They're watery, acidic. Acidic bole to? Right. And sour. Another word for acidic is sour. Yeah. Tangy. Let me search that word, tangy. Tangy. Tangy or tangy? Tangy. Tangy. Uh, Tangy. Tangy flavor is strong and sharp. Tangy lemon top. Okay. It is tangy. Yeah. Strong, acidic. Okay. Sharp. Tangy. Tangy. TNGY. Strawberries. So for the first time I ate strawberries was when a girl student whose father was a fruit merchant, okay, she brought me a packet of strawberries. And it was the first time because I said the same thing in the class while teaching that I have never eaten strawberries. This never. I said no. Okay. And one day she brought me a box of strawberries. Maybe about a month or 2 months after that lesson. I thought, okay, nice. Very, very thoughtful of you. Okay. G. Chips. Nowadays, children grow on chips. They live on chips, right? They eat chips in the morning, chips in the afternoon, and parents can do nothing. Contribute. You can make your comment to me. Don't be scared. Nothing will happen. Just change the culture. I know you have something to say and you think it is a nice thing to say, but you're only saying it to your friend. Say it to the whole class. Say it to everybody, not only to the person sitting next to you. What was your comment? Shashi, she said something to you. What was that? I will not be okay with this then. If you are saying something to your friend, you should say it to the whole class. The whole class is a friend. Make it a habit to contribute to the class by making the comment loudly, right? Even if it is a little funny, no problems. Chips. Lay's is a big brand. Lay's make chips. Before Lay's, there was something called Uncle Chips. Uh, Uncle chips were also very popular. Uncle chips were very popular. Okay, chips is a plural noun, by the way. This S, if you remove S, it is a chip, plural chips.
Okay, bananas. We all love bananas, didn't we? Oh, yes. Ripe bananas. Anybody who didn't like bananas here? Shashi didn't like bananas. Do you like bananas now? You don't like bananas even today? Oh, you don't like the taste? Or you have an allergy? What is the situation? बात करिए. So say, I like naturally ripe bananas. बोलिए क्या? Naturally ripe. Okay. Okay. Some bananas are not naturally ripened. They are ripened in a very artificial way by adding chemicals like carbide. Mm. Bananas and mangoes both. Well, yes, true, true. There is a gas which is called, I think, acetylene. I think it is acetylene. Anybody chemistry student here? I think it is acetylene that ripens in a fruit. Let me ask Google, which gas ripens fruit? Which gas ripens fruit? Ethylene it is. Okay, not acetylene, ethylene, sorry. It's been a long time, I forgot. It is ethylene, not acetylene. Yeah. So that is a carbon, compound, also releases the same ethylene gas. Okay, but then natural ethylene gas, ripens the fruit in a slow manner, I will say maybe, and this fastens the speed. It is true when you eat something that is naturally ripened on the tree, then it tastes different. And when you ripen it in an artificial method, then it doesn't taste the same. Okay, then we have red wine. I think nobody drank that. Did you? Did you drink red wine when you were a child? Did you drink red wine? Huh? Come again? We would be killed. Yeah, yeah, exactly. Parents wouldn't approve of it. Did your father drink when you were a small child? Did your father drink wine? My father did. Yes. Okay. Apple juice. I love apple juice, but when I was a child, I never got to drink apple juice. Then we have more things here. Tea. I liked tea when I was a child because my parents drank tea. So I wanted to drink as well, but they didn't allow me. They didn't allow me to drink, tea. They said tea is for grown-up people, not for children. So we still requested, we still begged, give us a little, give us a little. Just the last few, last few drops. Then they would leave a few drops at the end, and they would just give that to us. हिंदी में बोलते थे छोड़ के दे दीजिएगा ना छोड़ के. We wanted a separate cup, but we were never allowed. भैया चाय आपके लिए नहीं है. Chai is only for grown-ups. Yeah. So then the last option was छोड़ के, means last few drops. Yeah. And my sister's favorite, it was chai and roti. She always had breakfast, chai roti for breakfast. Chai and paratha as well. Some people eat chai and paratha. हाँ, you do that too. You still eat chai and paratha for breakfast. Yeah. I just want to tell you something. Giggling, the way you're laughing is not going to contribute. ठीक है. मैं आप लोगों को थोड़ा सा हार्श कमेंट्स दे देता हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट कमेंट दे देता हूँ. आप लोग ग्रोन अप की तरह बात करें, जैसे इसने कैसे जवाब दिया कि सर आई एट चाय रोटी. ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन हुआ, ये प्रैक्टिस है, ये आपके लिए इंग्लिश में हेल्प करने वाली है कि आपने कोशिश करी बोलने की. तो आप सबको इस बात को समझना होगा, वी आर हियर जस्ट टू टॉक अबाउट आवरसेल्व्स. वी वांट टू लर्न इंग्लिश एज अ लैंग्वेज. कोई एकेडमिक बातचीत होनी जरूरी नहीं है. इसलिए मैंने एनकरेज किया था आफिया को कि तुम जो शशि को बता रही थी, हम लोग को भी बता दो जोर से बोल के. वो तो कुछ छोटी सी बात होगी,
इन तुम्हें लगता है कि क्लास में ये सब बातों को बोलने से ये होता है ना, डांट पड़ती है, शायद बचपन में पड़ी होगी। यहाँ नहीं पड़ी, यहाँ तो कंट्रीब्यूशन है। तुम अपने बारे में कुछ बोलोगे तो, अभी तुमने देखा दीपक ने एक लाइन बोली अपने बारे में, हमने अप्रिशिएट किया। तो प्रॉब्लम क्या है कि तुम लोग बेवकूफ हो। सामने से एग्जाम्पल दिखा कि अच्छा उसने अपने बारे में बात की तो सर ने इनकरेज किया, अप्रिशिएट किया, फिर भी तुम इसको ये नहीं करोगे। शर्माते हुए अश्वी बोली कि आई स्टिल डू सर। ठीक है, शर्माते हुए बोले आई स्टिल डू सर। ये आराम से बोल सकते हैं सर आई स्टिल ईट चाय रोटी फॉर ब्रेकफास्ट। तो फिर दूसरे लोग भी एनकरेज होंगे, बात ही तो करना है यहाँ पे। ठीक है, और तुम्हें लगता है कि कोई बोला तो हमें हंसना है, किस बात पे हंसना है? इस बात पे कोई चाय रोटी खाता है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? हाँ, इट्स अ फन गुड थिंग टू शेयर, आई वुड से। वी फील गुड अबाउट इट दैट एवरीबॉडी इज शेयरिंग, राइट? सो प्लीज feel encouraged to share about yourself. We are talking about when you were a child. What things did you like eating when you were a child? So, yeah. Like I told you my story. We wanted to drink tea, but we were not allowed. They didn't allow us. They said, no, no tea for children. But my sister, because she was the only daughter, my papa had, three brothers and only one daughter. So she was allowed to eat chai roti for breakfast. But not chai, not only a cup of tea. Chai roti was okay. Sometimes we also ate chai roti. And yeah, it tastes good actually. Chai roti tastes good. I like chai, I like tea, I still like tea, but I don't drink every day. I drink tea with, bundia. I drink tea with uh, rusk biscuit, yeah, or any biscuit. Yeah, Chakul good cha. biscuit is also okay. Then we have crisps in M. Crisps. I don't know. I mean, aloo we all love in every form. We love potatoes. Children love potatoes. The sweetness of potatoes is always, something children love. And N is yogurt. We like yogurt too. Dahi. Anybody doesn't like dahi? Anybody here? Oh my goodness, there are a lot of people who don't like yogurt. They don't like yogurt. Never eat it. You guys never eat dahi. You don't like the smell of it. Uh, my daughter doesn't either. You know what? Dahi we make at home and dahi you buy from the shop sometimes is very different. The dahi from the shop will be sweet and creamy, and dahi at home is watery and, sour. And then there is Misti Doi from Kolkata. Oh, really tasty. I love dahi, sweet dahi. English for dahi is yogurt is also fine. Curds is also fine. In India, curds is more common for dahi. But to be honest, curds, the technical meaning of curds is not dahi. You know Kumara dahi? Have you heard Kumara dahi? Kumara dahi, ऐसे करके कुछ सुना है कभी? No, okay. Sometimes what happens in the summer season, that when you don't boil the milk, when you don't boil the milk, and then the milk will become thick, and you say दूध फट गया, and that is called curd technically. The dictionary definition of curd is the thick part of milk. When it kind of becomes bad, then the thick part of milk is called curd. तो दही वो तो नहीं होता फटने वाला। तो but in India people use the word curd or curds, okay, plural singular doesn't matter, but technically curd is not dahi. In India we use the word curd for dahi. Technically curd means thick part of dahi, sorry, दूध, milk. When दूध goes bad, when milk goes bad, जब milk खराब हो जाए तो जो thick part है उसको क्या बोलते हैं? And then there is water separates from that thick part, उसको whey बोलते हैं। चलिए आके देखते हैं। अब पनीर बनाते हो ना, तो पनीर का भी पनीर कर्ड्स ही बोलते हो। जो थिक पार्ट है उसको क्या बोल देंगे? कर्ड्स। अब सोचो आप, दही तो नहीं है वो,
तो इंग्लिश में दही के लिए कर्ड्स वर्ड टेक्निकली नहीं है, कर्ड्स थिक पार्ट के लिए, मिल्क के थिक पार्ट के लिए, याद रखना टेक्निकली। बट पीपल यूज इन इंडिया कर्ड्स फॉर दही। इट्स ओके, इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो चलेगा, लिखा भी रहेगा डिक्शनरी में। लेट मी शो यू। जब आप विदेशियों से बात करेंगे तब ये सब मायने रखेंगी बातें, अदरवाइज इंडिया में क्या ही फर्क पड़ता है, सब लोग कर्ड्स बोलते हैं, आप भी कर्ड्स बोलो, कोई दिक्कत नहीं। कर्ड चीज है एक, कर्ड चीज मैंने बताया आपको, वो जो वाइट वाइट रहेगा बनता है पनीर, जो बनाते हैं वो कर्ड चीज है। और खाली कर्ड, द सॉलिड सब्सटेंस दैट फॉर्म्स व्हेन मिल्क टर्न्स सार, व्हेन मिल्क टर्न्स सार, दूध खट्टा हो जाए, when milk turns sour, then the solid substance that forms, that is called curd technically. Okay, वो क्या दही इसी को कहते हैं क्या हम लोग? नहीं ना, दही is when we add a certain bacteria to the milk. Which bacteria, guys? Lactobacillus. When that bacteria, gets added to milk, then milk slowly and slowly changes to dahi, and that thing is in English is called yogurt. तो हम लोग जो बन खाते हैं वो है प्लेन योगर्ट, होममेड योगर्ट, समझ गए? एंड देर आर सम शॉप्स विच सेल योगर्ट इन डिफरेंट फ्लेवर्स, स्ट्रॉबेरी योगर्ट। ओके, तो ये स्ट्रॉबेरी योगर्ट मतलब वो है दही, बट यू हैव एडेड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर टू इट। ओके, लेट्स सी, we have chocolate. I never ate chocolate when I was a child because chocolate was not available in the shops. In the 1990s, chocolates were not available in Vihashri. Chocolates came later in late 1990s. Early 1990s, when I was a kid, chocolate was not available. 1990, I was 10 years old. Okay, until 1990, there were no chocolates here in the market. And then we have coffee. We only heard about coffee, drank coffee at weddings, but we didn't know much about it. When I was a child, I didn't know much about coffee, honestly speaking. I only drank coffee when I was, I think, 14, 15, after that. Before I was 14 or 15, I didn't know what coffee was. Never drank coffee. Life was different in 1980s. Life was different. Eggs. I've always enjoyed eating eggs. I've always loved them. Not today. Always, always. Eggs. They have always been my favorite. Do you like eggs? And when you were a child, did you like eggs? Yeah. Whenever my papa had extra money, when it was winter season, he would ask, "Do you want to eat eggs?" We say, "Yeah." So we would not go to buy eggs from the shop mostly. We would go to the, Thela, and we would buy boiled eggs from there. Yeah. Back then, they didn't charge much for boiling, just 25 paisa extra. Raw eggs for 1 rupee and boiled eggs for 1 rupee 25 paise. So who takes the trouble of hassle of bringing, them and then boiling them? Because when I was a child, my mom had so many restrictions, like, if you eat eggs, then you have to wash the, do so many things. I mean, you have to boil them outside the kitchen, then you have to wash the stove as well, after boiling eggs on it, I mean. So we loved buying boiled eggs from the shop. Now, no problem. We can boil eggs wherever we want. My family and their views have changed a lot on many things. Our family are a modern family. We have incorporated a lot of modern ideas in our family. A lot of people cook chicken outside their kitchen. Not in our family. We cook chicken inside. Our
carrots, straw, and then we have, some other things as well. Now, I've already talked about it. Some are countable and some are uncountable. Uncountable nouns don't have a plural form normally. Uncountable nouns, because they are uncountable. क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अनकाउंटेबल मतलब क्या होता है? जिसको, तो जब काउंट नहीं करेंगे तो दो कैसे बोलेंगे? और जब दो नहीं बोलेंगे तो प्लूरल कैसे होगा? जब अनकाउंटेबल तो ढेर सारा कैसे होगा? ठीक है, तो फिर प्लूरल कैसे होगा? प्लूरल मतलब होता है मोर देन वन। पानी को कैसे बोले मोर देन वन वाटर? नहीं बोल सकते। तो वाटर इज ऑलवेज सिंगुलर बिकॉज इट इज अनकाउंटेबल, so it is always singular. So milk is also uncountable like water, so milk is also always singular. Why is it singular? Because it is uncountable. Uncountable cannot have a plural form. Only countable nouns can have a plural form. There can be one apple, there can be two apples, three, many, a lot of, right? So apples is a plural noun. In English, countable nouns can have two forms, singular and plural. All nouns don't have two forms. Only countable nouns have two forms, singular and plural. Uncountable nouns have only one form, that is singular. Okay. So when you say cheese, when you say ice cream, normally, when you say tea, coffee, these are uncountable. So normally they don't have a plural form. In some cases हो जाते एक आध जगह पे, वो पर सीख जाएंगे हम लोग धीरे धीरे। नॉर्मली नहीं, 100 में 99 जगह वो अनकाउंटेबल ही रहेंगे और सिंगुलर ही रहेंगे। किसी जगह, एक खास जगह पे काउंटेबल हो जाता है। अब आप दुकान में गए, 4 दोस्त गए, तो क्या बोल देते उसको? भाई 4 चाय देना। तो आप बोलते तो हो 4 चाय देना, तो 4 चाय देता है, 4 कप ऑफ टी, 4 ग्लास ऑफ टी, वो क्या देता है वो आपको? आप समझ रहे हो ना? लेकिन आप बोलते क्या हो? 4 चाय देना भैया। ठीक है, तो वो इसी जैसे वहां 4 चाय, लेकिन और कब बोलते हो? घर में बोलते हो 2 चाय। घर में अगर 2 लोग आए तो कभी किसने बोला है 2 चाय बना दो तो मम्मी? नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? अब वहां दुकान पे जाके क्या बोलते भाई? 4 चाय देना। ऐसे बोले कि नहीं? बोलो, मेरी बात कर सही है गलत? तो जब तुम एक्नॉलेज करोगे जिस दुनिया में रहते हो, तो उस दुनिया की जो लैंग्वेज है वो समझ पर पाएगी। जब तुम क्लास में घुसते हो लैंग्वेज सीखने, तो दुनिया भूल जाते हो कि दुनिया कैसे बात करती है। बस उसी को इंग्लिश में सीखना है मेरे बच्चों। जैसे हिंदी में 4 चाय बोलते हैं ना, वैसे इंग्लिश में भी बोलते हैं, आई वॉन्ट 2 टीज प्लीज, 2 टीज प्लीज। तो बस वही, वहां पर 2 टीज बोलने से काम चल जाएगा। ओके, चल बोल सकते हैं एकदम। अब मुझे ये बताना, ये टीज 2 टीज बोलने से ये हो गया कि टी अब काउंटेबल नाउन है हर जगह? बस उस जगह पे ऐसा करते हैं दोस्त। ओके, बाकी आपने कभी नहीं बोला होगा 2 चाय और 3 चाय। दिन भर में कितना कप पी लेते हो? तो सर हम 4 कप पीते हैं सर दिन भर में। कहाँ बोलते हैं 4 चाय पीते हैं? नहीं बोलते हैं, बात ही नहीं, नेचुरल लगती ही नहीं बात। बोला जा सकता है कि नहीं? आपकी मर्जी। कोई जब ये पूछता है ना, बोला जा सकता है कि नहीं, मैंने कहा लैंग्वेज की कोई थोड़ी माँ बाप है कि भैया वो रोने लगेंगे मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जो करना करो। तुम बोलो छत के ऊपर जा रहे हैं, बोल दो, कोई जबरदस्ती है, बोल दो। ये अलग बात है कि सारे लोग कहते हैं हम छत पे जा रहे हैं। क्या बोलते हैं? नहीं, तुम बोलोगे ना हम छत के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है बोलो। कोई जबरदस्ती है, रोक देगा कोई? बोल लो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन तुम्हें एहसास तो है कि सब लोग क्या बोलते हैं। और वैसे ही जब बात समझ में आ जाए कि लोग क्या बोलते हैं, तो वो हो गया एक्सेप्टेबल। उसके बाद उसको तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए जितना तोड़ना है मरोड़ना है करो। कोई माँ बाप नहीं होते लैंग्वेज के। एग्जाम में ये सब करके कोई फायदा है नहीं। वो तो पूछेंगे आपसे कि ज्यादा सही क्या होता है, सही क्या होता है, सही क्या होता है, तो बस जान लो सही क्या होता है, बस वही करते रहना। तो देर आर 2 पर्पसेस वाई पीपल लर्न। वन, टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट करने के लिए वैरायटी ऑफ थिंग्स जाननी होती हैं, जो जो बोला जाता है। ठीक है, और एग्जाम में डिपेंड करता है कोई कैसे एग्जाम लिया जा रहा है, इरादा कैसा, एग्जाम लेने वाले का इरादा क्या है। आपका रास्ता आसान बनाना या आपका रास्ता मुश्किल बनाना? अगर आपका रास्ता मुश्किल बनाना है तो ऐसे क्वेश्चन सेट करेंगे कि कोई फॉर्मूला नहीं काम आ सके, कोई शॉर्टकट काम नहीं आ सके। और वो जब
नहीं परवाह करते तो शॉर्टकट वाले रास्ते छोड़ देते खुला, भाई ऐसे कर लो। 4 एग्जाम्स हुए किसी चीज के, टीचर्स ने गौर करा क्वेश्चन, अरे यार ऐसे हो रहा है, तो फिर वो शॉर्टकट बताने लग जाते हैं। लेकिन वो चाह लें तो कभी कोई शॉर्टकट नहीं अप्लाई हो पाएगा, वैसे से सवाल सेट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन करते नहीं है, इसलिए एग्जाम के लिहाज से पढ़ा हुआ नॉलेज कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता लैंग्वेज में। लैंग्वेज रियल जिंदगी की चीज है। अब हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, वैसे ही कुछ जगह इंग्लिश में बातचीत होती है। कल मैंने 3 घंटे बिता दिया फोन पे एलिसन के साथ, ठीक है, तो मेरी अमेरिकन फ्रेंड के साथ 3 आवर्स आई टॉक। तो 3 घंटे में हम लोग बात जो करे, ठीक है, तो अब कितने तरह के वोकैबुलरी स्ट्रक्चर्स यूज हो गए होंगे उन 3 घंटों में, राइट। तो बातचीत करने के लिए जब आप सीखते हैं, और वो भी अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ की बातचीत, तो आपको कई बातचीत सीखनी सीखनी पड़ सकती है। तो हमेशा पर्पस समझ के चलिए। और ये बहस का मुद्दा नहीं रहेगा, आसान लगेगा अगर आप अपना प्रैक्टिकल दिमाग लगाइएगा तो, ठीक है। आप मुझे बताइए, आप 2 2 मीट 3 मीट बोले हैं, 2 मीट खाए 3 मीट खाए, तो मीट क्या है? अनकाउंटेबल। और सुनिएगा, बोले सर तो 2 पीस खाते हैं, तो आपने खुद तो कहा क्या खाते हैं आप? तो पीस खाते हैं, पीस थोड़ी था मीट। आपने तो बोला मीट काउंटेबल, पीस तो काउंटेबल है, तभी तो आपने 2 पीस का, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस आप बोलते हो, तो पीस तो काउंटेबल है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप 2 मीट तो नहीं खाते ना, मीट इज, तो जो मटेरियल है वो अनकाउंटेबल है। जैसे अब लकड़ी है, लकड़ी से आप चेयर बनाते हो, बेड बनाते हो, अलमीरा बनाते हो, तो लकड़ी जो है वो मटेरियल है जिससे ये सब चीजें बनी। तो मटेरियल हमेशा क्या होता है? क्योंकि वो मटेरियल है, उसमें उसका प्लूरल क्या ही करें आप। अब समझने की बात कोशिश करिएगा। अगर किसी चीज को मटेरियल के तौर पे समझा जाए, इंग्लिश में एक नाउन होता है मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन नेचुरली क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा नेचुरली, क्योंकि आपने कहा वो मटेरियल है। मटेरियल नाउन क्या होता है वो समझना जरूरी है। प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक से आप बॉटल बनाओ, चेयर बनाओ, कुछ भी बनाओ, खिलौने बनाओ, लेकिन उसके उसमें यूज हुआ है जो मटेरियल वो क्या है? प्लास्टिक। अब प्लास्टिक जैसा दूसरा मटेरियल तो दूसरा ही नाम होगा ना। तो प्लास्टिक अपने आप में तो एक चीज है, अब प्लास्टिको तो नहीं हो सकता, तो प्लास्टिक मटेरियल के तौर पे वो क्या रहेगा? अनकाउंटेबल, राइट। हम्म। तांबा, तांबा भी अपने आप में एक मटेरियल है, तो जितने मटेरियल नाउन्स होंगे वो क्या होंगे? एक, अनकाउंटेबल होंगे। और सुनिएगा, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होंगे, एब्स्ट्रैक्ट, वो क्या होंगे? अनकाउंटेबल होंगे। एब्स्ट्रैक्ट जो होते हैं ये बाय डिफॉल्ट होते हैं एब्स्ट्रैक्ट, अनकाउंटेबल। बताता हूं क्यों। जैसे मैंने आपको बताया, मटेरियल नाउन कपड़ा, अब उस कपड़े से आप पैंट बनाए हो, शर्ट बनाए हो, मटेरियल क्या है? कपड़ा, ठीक है। तो कपड़ा जो होगा वो क्या होगा? अनकाउंटेबल, मटेरियल है तो। और वही कपड़ा यूज करा जाता है कॉमन नाउन के तौर पे। जैसे उसने कपड़े नहीं पहने थे, उसने कपड़े, उसने पुराने कपड़े पहने थे, तो ये मटेरियल नाउन नहीं बोल रहे यहाँ पर कपड़े। प्रॉब्लम ये, हमारा दिमाग ये सब चीजों को सोचने के लिए तैयार नहीं है। हम कहते हैं लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, लेकिन हम तैयार ही नहीं सब के बारे में सोचने के लिए, दिमाग में तैयार नहीं है कि हमें ये सब पर ध्यान देना चाहिए। कई लोग तो अभी अनकंफर्टेबल हो गए होंगे, ये क्या बात हो रही है, जबकि मेरा काम इतना आसान होना चाहिए। अगर आपको स्कूल में इन सब बातों पे बता दिया जाए तरीके से, कॉन्सेप्ट दे दिया जाए, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी मेरे लिए। लेकिन वो आप स्कूल से बाहर आए जोड़ घटाव गुना भाग सीख के, और साइंस के कुछ फॉर्मूलाज याद करके, कुछ कॉन्सेप्ट्स याद करके, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एक चीज पता चल गई आपको स्कूल जाने की वजह से। बस लैंग्वेज में क्या सीखा आपने? तो लैंग्वेज स्कूल जाने से पहले भी आप जान रहे थे, बातचीत करते थे, स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद भी कर रहे हैं। मैं पूछता हूं आपसे कि ये, जैसे मैंने कहा, उसने कुछ लकड़ियां जमा करी, उसने कुछ, ये लकड़ी मटेरियल नाउन है या ये लकड़ी कॉमन नाउन है? दोनों में फर्क होता है। कॉमन नाउन बता दूं, जैसे ऑरेंज है, जैसे लड़का है, जैसे टीचर है, ये क्लास है। कि ये लड़का है तो ये लड़का है, लड़की नहीं है, एक क्लास है ये। टीचर है, ये दुकानदार नहीं है।
तो बहुत सारे लोग टीचर्स होते हैं, उन सबको एक क्लास में रखा जा सकता है कि ये सब क्या है, टीचर्स है। वैसे इस सारे लोग को रखा जा सकता है, ये सब क्या है, लड़के हैं। ये सारे क्या है, लड़कियां। ये सारे क्या, ऑरेंजेस हैं। ये सारे क्या है, पपायाज। तो कॉमन नाउन्स जो होते हैं, बात समझ में आ रही है। तो कॉमन नाउन्स दोनों तरह के हो सकते हैं, काउंटेबल भी हो सकते हैं और, बात समझ में आ रही है आपको, कॉमन नाउन दोनों तरह के हो सकते हैं, काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी, ठीक है। तो यहां पर देखने वाली बात होगी, हालांकि इसमें कॉमन नाउन में अगर गौर से देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर बोलना, मुझे वापस लेना चाहिए अपने स्टेटमेंट को। गौर से देखिएगा, मिल्क, ठीक है। नॉर्मली मिल्क क्या है, एक मटेरियल नाउन है, एक कॉमन नाउन है। नॉर्मली मटेरियल नाउन है, राइट, मटेरियल नाउन है। मिल्क एक मटेरियल है, राइट, बिल्कुल। और अभी इसको कॉमन नाउन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। एक नाउन, नाउन दोनों हो सकता है, मटेरियल नाउन भी और कॉमन नाउन भी। देखिए समझाता हूं कि ये गाय का दूध है, ये भैंस का दूध है, ये बकरी का दूध है। तो तीनों दूध है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, एक क्लास बना ना, ठीक है। तो उस हिसाब से ये क्या बना, कॉमन नाउन। तो मैं और बातें करूंगा इन सब बातों टॉपिक्स पे। अभी फिलहाल के लिए इतना खाली याद रखिए कि कुछ चीजें इसमें से जो हैं, जो मटेरियल, जो भी आप जिसको मटेरियल के तौर पे आप समझते हो, उसको बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि मटेरियल है और वो अपने आप में अनकाउंटेबल ही होगा, क्योंकि वो एक मटेरियल है। उसके बाद कोई और, उसका प्लूरल, ठीक है। तांबा है और तांबा है और तांबा है, तो दो तांबे तीन तांबे नहीं होंगे, ढेर सारा तांबा होगा, ढेर सारा। सोना है, सोना भी एक मटेरियल है, चांदी भी एक मटेरियल है, राइट। तो जो चीजें मटेरियल होती है वो अपने आप में अनूठी होती है ना। सोना सोना है, सोना जैसा दूसरा चीज नहीं है, चांदी चांदी है, तो अपने आप में अनूठा है, वो मटेरियल है, इसलिए उसका प्लूरल कैसे करें। दो चांदी नहीं बोल सकते, दो चांदी के सिक्के, दो चांदी की अंगूठियां। तो सिक्के और अंगूठियां क्या है, कॉमन नाउन या मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन है सिक्के और अंगूठियां। तो फिर से बताता हूं, हर नाउन जो होता है एक कैटेगरी अगर डिनोट करता है, वो कॉमन नाउन है। जैसे अंगूठी, यहाँ भी एक अंगूठी, वहां भी अंगूठी, वहां भी अंगूठी, ये अंगूठी, वो अंगूठी, सारी अंगूठियां हैं। तो एक इंडिविजुअल का नाम नहीं है, एक ग्रुप का नाम है, और इसीलिए इसको कॉमन नाउन कहते हैं, कॉमन है ये। जैसे कि आपके पास एक अंगूठी है, इनके पास एक अंगूठी, इनके पास एक अंगूठी है, मेरे पास एक अंगूठी, ये चारों क्या है, अंगूठी ही है, ठीक है। तो चारों में एक बात क्या कॉमन है कि एक अंगूठी है ये, ठीक है। कॉमन है इसलिए अंगूठी क्या हो गया, कुछ महसूस हो रहा है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है। कॉमन नाउन इस तरह से काउंटेबल बन जाते हैं क्योंकि वो कई लोगों के बीच में कॉमन है। तो कॉमन नाउन्स बाय डिफॉल्ट काउंटेबल होते हैं, बात समझ में आ रही है। तो मिल्क जो है एक मटेरियल नाउन है, वह अनकाउंटेबल है। जब मिल्क काउंटेबल होगा, जब वो कॉमन नाउन होगा। आपको नहीं पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपके दिमाग का ऑलरेडी दही होना शुरू हो चुका है, मुझे एहसास ऐसा है। मुझे दीजिएगा कॉन्फिडेंस अगर समझ में आ रहा होगा तो, ठीक है, बोल करके अच्छे से कि घर जो है एक कॉमन नाउन है, कि वो भी एक घर है, ये भी एक घर है, वो भी घर है, उधर घर है, ये सब घर है। तो ये सब क्या है, ये गुफा नहीं है, ये घर है। गुफा है, तो गुफा एक कॉमन नाउन है, ठीक है। तो जितने भी ऐसी चीजें जो ढेर सारी होती हैं और सब में एक चीज कॉमन होती है, उसको कॉमन नाउन, उसका एक नाम देते हैं कि ये है। जैसे पर्दा है, ये भी पर्दा है, वो पर्दा है, और पर्दे लेके आ जाइए। तो इस सब में एक चीज, सबको एक नाम दे दिया है, क्या नाम दे दिया इन सबको, पर्दा। तो ये क्या होगा, तो कॉमन नाउन बाय डिफॉल्ट क्या होगा, काउंटेबल होगा कि नहीं होगा, तभी तो कॉमन होगा, कॉमन नाउन है क्योंकि ढेर सारे लोगों का एक नाम है, ढेर सारे लोगों का एक नाम है। जैसे पर्दा है, पर्दा है, पर्दा है, पर्दा है, तो ये सारे पर्दे हैं। तो कॉमन नाउन हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या होता है, काउंटेबल होता है। बात समझने की कोशिश करिएगा अगर समझ में आ रही हो तो। जैसे बकरी है, वो बकरी है, गाय नहीं है, वो बकरी है, भैंस नहीं है, वो बकरी है, शेर नहीं है। तो बकरी क्या है, कॉमन नाउन। तो क्या एक बकरी होती है और बकरी नहीं होती है, तो होगा ना। तो कॉमन नाउन बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। इसके दो फॉर्म्स हो जाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। आइए मटेरियल नाउन पे वापस। जो मटेरियल जैसे नाम बता रहे हैं कि उससे बनेंगे चीजें,
तो चीजें अलग अलग बनेंगी, लेकिन उनका कोर जो उसका होगा वो होगा मटेरियल, और मटेरियल चूंकि अपने आप में अनूठा होता है इसलिए वो क्या होगा, और हमेशा अन, ठीक। तो मटेरियल नाउन तक रह गए अनकाउंटेबल, कॉमन नाउन हो गया काउंटेबल, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे, ठीक है। गरीब आदमी के सिचुएशन को गरीबी कहते हैं, गरीब आदमी के सिचुएशन को, गरीबी अपने आप में कोई चीज है, दिखाओ कहाँ है गरीबी, उसका बॉडी होता है। तो गरीबी एक ऐसा चीज तो है, गरीबी खराब चीज है, गरीबी बहुत भयानक चीज है, ठीक है। तो चीज यानी नाउन है, नाम है एक स्थिति का। एक आदमी के पास बहुत बड़ा घर है, बहुत पैसे बैंक में है, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं वो गरीबी में है? तो गरीबी में नहीं है, तो ये नाउन जो गरीबी नाउन है वो उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वो एडजेक्टिव अमीर है, वो अमीरी में रहता है, ठीक है। अमीरी, गरीबी और अमीरी ये दोनों स्टेट्स हैं। स्टेट्स मतलब स्थितियां, सिचुएशंस। क्या है ये? स्थितियां, सिचुएशंस। तो बताइए कि गरीबी और अमीरी दोनों कैसे नाउन्स हैं, बॉडी है इनका या बॉडी नहीं है? तो जरा आज हम कर ही देते हैं, अगले दिन के लिए नहीं छोड़ते, आज चल ही देते हैं इस रास्ते पे, जो होगा देखा जाएगा। तो दो नाउन्स होते हैं, एक जिसकी बॉडी होती है, जिसकी बॉडी नहीं होती। पहले ऐसे चलेंगे, एक नाउन होता है जिसकी बॉडी होती है, एक नाउन जिसकी बॉडी। तो जिसकी बॉडी होती है, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन, और जिसकी बॉडी नहीं होती वो, आपको पता है। इन दोनों में बताइए कि काउंटेबल कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता? कॉन्क्रीट नाउन काउंटेबल, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल नहीं हो सकता है। जो एब्स्ट्रैक्ट है वो काउंटेबल कैसे है? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब उसका बॉडी नहीं है, तो एक और दो कैसे करोगे? काउंटेबल वर्ड को समझना, काउंटेबल मतलब काउंट करने लायक, ठीक है दोस्तों। तो हवा को हम कैसे बोले, एक हवा, दो हवा, तीन हवा, बॉडी नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और दूसरा हो सकता है हवा की बॉडी हो सकता है हवा की बॉडी हो, बस आंखों से मानते हो? हाँ, साइंस पढ़े हो तो समझ जाओ ना। बलून में हवा अंदर है तो उसकी बॉडी है, इसी वजह से तो वो फूला हुआ है, राइट, लेकिन वो दिखता नहीं हमें। तो हवा एक कॉन्क्रीट नाउन समझा जा सकता है एक तरीके से, ठीक है। बात समझने की जरूरत है। अच्छा छोड़ देते हैं ये मैं जब भी पढ़ाने जाता हूँ ना, मैं ऐसे टॉपिक टच करता हूँ ना जहाँ लोग उलझ जाते हैं। मुझे ये मेरी खराब आदत है, मैं सीधी सीधी बातें नहीं बताना पसंद करता। मैं हमेशा उधर ले जाता हूँ जहां पर आदमी फंसे, ठीक है। पता नहीं क्या मेरे अंदर खराबी है, बहुत सी बातें बताने के लिए, सिंपल सिंपल बातें पहले वो कर लेते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं किताब। तो किताब है वो क्या है? कंक्रीट। और किताबों से क्या मिलता है? ज्ञान। ज्ञान क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट। आप खाते हैं आम, आम क्या है? कंक्रीट। और आम में होता है स्वाद, स्वाद क्या है? बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो नॉर्मली जिनकी बॉडी नहीं होगी वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो नॉर्मली अनकाउंटेबल होने चाहिए, बाय डिफॉल्ट होने चाहिए। लॉजिक कहता है हमारा कि चूंकि एब्स्ट्रैक्ट हैं तो वो कैसे हो सकते हैं दो तीन? वो एब्स्ट्रैक्ट है, उनकी बॉडी ही नहीं है, तो दो तीन कैसे करें उसको? इसलिए वो क्या होने चाहिए? अनकाउंटेबल। और जब आते हैं कॉन्क्रीट नाउन पे, कॉन्क्रीट नाउन पे दो तरह के नाउन हो सकते हैं, कॉमन और मटेरियल। सोच रहे हैं? अब कॉन्क्रीट नाउन है, लेकिन कॉन्क्रीट में दो हैं, एक कॉमन है, एक मटेरियल है। जैसे दूध का भी बॉडी होता है, दूध आप छू सकते हैं, तो दूध है कॉन्क्रीट नाउन लेकिन है मटेरियल। तांबा बॉडी है उसका लेकिन वो है मटेरियल। तो जो मटेरियल नाउन होता है वो कॉमन नाउन, वो कॉन्क्रीट नाउन का एक हिस्सा है लेकिन वो रहेगा अनकाउंटेबल के काउंटेबल। सोच के बोलो, बहुत अच्छे। फिर कॉन्क्रीट नाउन में एक कैटेगरी बनेगी किसकी? कॉमन नाउन की। वो क्या होगा? काउंटेबल। बकरी है तो एक भी होगी, दो भी होगी, तीन भी होगी, चार भी होगी, ढेर सारी होंगी, तो वो काउंटेबल होंगी। बात समझ में आ रही है दोस्तों? इसमें प्रॉपर नाउन को हम लोग इसलिए शामिल नहीं करें क्योंकि हमें परेशान नहीं करते प्रॉपर नाउन, उसका अपना नियम कानून है। जैसे उसकी स्टार्ट होती है कैपिटल लेटर से, प्रॉपर नाउन
अब प्रॉपर मतलब इंडिविजुअल का नाम। दीपक लड़का है, रुद्र भी लड़का है, ठीक है, तो दोनों में कॉमन है कि दोनों लड़का है, तो लड़का जो वर्ड है वो कॉमन नाउन है दोनों के लिए। लेकिन दोनों इंडिविजुअल के तौर पे अपना नाम रखते हैं। इस लड़के का नाम दीपक हो गया तो दीपक है प्रॉपर नाउन, उसका नाम रुद्र है तो वो प्रॉपर नाउन हुआ हो गया। तो नदी कॉमन नाउन की प्रॉपर नाउन? बहुत सी नदियां होंगी, और एक नदी का नाम है गंगा, एक का नाम है सतलज, एक का नाम है रावी, एक का नाम है नील। ठीक है, कुछ समझ में आया? तो इतनी तक बात रह जाती तो फिर कोई परेशानी नहीं होती। एक प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जो मटेरियल नाउन्स है ना, ये कई बार कॉमन नाउन्स के तौर पे भी यूज होते हैं, और जब कॉमन नाउन के तौर पे यूज होते हैं तो जाहिर सी बात है वो काउंटेबल बन जाते हैं। जो मटेरियल नाउन कॉमन नाउन के तौर पे यूज होंगे वो क्या बन जाएंगे? तुरंत काउंटेबल हो जाएंगे जैसे कॉमन हुए तो। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, जिसको साइड रखा था। ये एक बड़ी बड़ी समस्या होने वाली है आगे चल के, अभी ज्यादा नहीं परेशान करेगी आगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कई बार कॉमन नाउन के तौर पे काम करता है, वो है एब्स्ट्रैक्ट, इन कुछ जगहों पे उसको कॉमन नाउन के तौर पे यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल देके दिखाता हूं। अनुभव, एक बच्चा जो इस दुनिया में आया है उसके पास क्या नहीं है? अनुभव एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट? आप आए इस इंस्टीट्यूट में, और आप यहाँ जितने दिन बिताए आप बहुत खुश महसूस किया, आपको लगा कि मेरा दिमाग को बहुत अच्छे से सर ने एकदम स्टिमुलेट किया है, मेरे दिमाग में बहुत आइडियाज गए, आप यहाँ से गए खुश होके, तो आप कहेंगे मेरा वहां जो अनुभव था बहुत अच्छा था। तो आपका एक है जीवन भर का अनुभव, और उसमें से एक अनुभव है यहाँ वाला। दोनों अनुभव ही है। एक तो कहा जा सकता है कि आप बहुत अनुभव है आपके पास, यानी कि ओवरऑल एक आइडिया, लेकिन जो यहाँ अनुभव हुआ, वो यहाँ जो हुआ वो एक पर्टिकुलर अनुभव हुआ, बाकी सारे अनुभव से अलग। इसीलिए इसको कॉमन नाउन के तौर पे यूज करके एन एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं, और बोलेंगे आई हैड ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। एज का गौर करिएगा, आई हैड ए वंडरफुल एक्सपीरियंस एट एसटीसी विद विनस। बात समझ में आई? तो अनुभव ऐसे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन यहां पर चूंकि इस जगह के अनुभव की बात करी आपने, उसको क्या कर दिया? रेस्ट्रिक्ट करा, और वो अलग करके एक इंडिविजुअल इंस्टेंस बनाया उसका, इसलिए ये बन गया आपका कॉमन नाउन, और जैसे ही कॉमन बना ये काउंटेबल हो जाएगा। तो ये वाला नाउन आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस को अंडरलाइन करके कोई पूछे किस तरह का नाउन है तो क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। लेकिन अगर कोई कहता है ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, ऑलराइट, ही हैज फुल स्टॉप, एक्सपेरिमेंट को सॉरी एक्सपीरियंस को अंडरलाइन कर दे, बोले कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कई बार यूज हो जाते हैं काउंटेबल तौर पे जब वो कॉमन नाउन के जैसे बिहेव कर रहे होते हैं, तो इसलिए उसके पहले ए एन लगाना पॉसिबल हो सकता है, प्लूरल करना पॉसिबल हो सकता है। तो बेसिकली एक नाउन होता है जो प्लूरल होता है, वो है कॉमन नाउन। ठीक है, जो कॉमन में ही जो जो वो कॉमन नाउन बनता है किसका हिस्सा है? कॉन्क्रीट नाउन का हिस्सा है वो। नॉर्मली किसका हिस्सा है? कॉन्क्रीट नाउन का हिस्सा है। और कॉन्क्रीट नाउन का एक और हिस्सा है जिसको कहते हैं मटेरियल नाउन, वो रहता है हमेशा बाय डिफॉल्ट अनकाउंटेबल। लेकिन वही कॉमन जो मटेरियल नाउन है वो भी कॉमन नाउन के तौर पे काम कर जाता है। जैसे अगर हम लोग बात कर दें कॉमन नाउन को, क्या कहते हैं मटेरियल नाउन को, किसके तौर पे? काउंटेबल के तौर पे बात करें, ठीक है, तो जब आप कहते हैं 40s, ब्रिंग मी 40s, ओके, तो चार चाय लाने के लिए बोला आपने, तो यहाँ आया 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 ये सब क्या है? चाय है। तो ये भी चाय, ये भी चाय, ये भी चाय, ये भी चाय है, इन चारों का नाम क्या है? चाय। इसीलिए चार चाय हो गया 40s। तो यह कैसे यूज किया गया इसको? कॉमन के तौर पे।
ठीक है। आपको लगता है ये बात आप 14 साल की उम्र में नहीं समझ सकते थे? समझ सकते थे। अगर कोई ऐसे ही, जैसा भी मैंने कोशिश की है उलझने सुलझने के दौरान, मैंने एक बात दिमाग में रखा कि यहाँ पर मुझे कोई मतलब नहीं है कि किताब में क्या लिखा है, थ्योरी उसको रिपीट करूं मैं आपके दिमाग को सोच रहा हूँ कि आप कैसे सोचते हो, मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर क्या आपके दिमाग पे असर होएगा, मैं सोच रहा हूँ ये सब बताते समय, और लगातार उस पर काम किए जा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि अब तक यहाँ पर, अभी से 10-15 मिनट पहले तक आपकी जो समझ थी नाउन्स की, उससे आप बेहतर हैं 10-15 मिनट में। अब आप भूल जा सकते हैं इन बातों को, ऐसा हो सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील, इंसानी फितरत है भूल जाना। तो थोड़ा रिवीजन कर लेना, ठीक है। एंड मे बी वी कैन डिस्कस दिस वन मोर टाइम। ऐसा कोई प्लान करके मैं नहीं आता कि ये बोलना था मुझे, मैंने कहा ना कि चलो लेट्स डू इट, जो होगा देखा जाएगा। इट्स नॉट माई स्ट्रेंथ आइदर, ये सब मेरी पढ़ाई स्ट्रेंथ नहीं है सब बताना मेरा, मतलब मैं ये सब पढ़ाने पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं रखता हूँ। बस ऐसे मैंने प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की। हो सकता है कोई ग्रामर टीचर आएगा, कहेगा ये बात जो बोली टेक्निकली गलत है, होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बात मैंने बोली हो सकता है उसमें से एक आध बात टेक्निकली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने बोली इसकी वजह से जो आपके अंदर चेंज आएगा, वो टेक्निकली बात सुन करके कभी नहीं आने वाला था, क्योंकि हम सब ने भाववाचक संज्ञा कर लिया है बचपन में। बोलो हाँ कि ना? क्या बना? भाववाचक संज्ञा का क्या बना? कुछ नहीं बना। आज बैठे हैं यहाँ पर कंफ्यूज्ड, ठीक है। 10 मिनट पहले तक कौन सा नाउन सिंगुलर होगा, कौन सा प्लूरल होगा, कौन सा काउंटेबल होगा, आप खाली मीनिंग पे सोचते थे, हाँ कि ना? खाली मीनिंग से सोचते थे कि दूध है तो दूध तो काउंटेबल नहीं हो सकता, पानी है तो पानी तो काउंटेबल नहीं हो सकता, ऐसे, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें। आइए 2 वर्ड्स लेते हैं, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, ठीक है, ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट। तो और 2 वर्ड्स लेते हैं, एडवाइस एंड सजेशन, एडवाइस एंड सजेशन। तो एडवाइस एक आइडिया है, और ये जो आइडिया एडवाइस, ये अनकाउंटेबल नाउन रहेगा। ये क्या रहेगा? अनकाउंटेबल। सजेशन हो सकता है काउंट, जबकि दोनों सिमिलर आइडियाज है ना। आपने मुझे एडवाइस दिया, आपने मुझे सजेशन दिया, ठीक, ठीक, महसूस होता है बहुत सिमिलर जैसा, लेकिन इसमें एडवाइस रहेगा अनकाउंटेबल और सजेशन रहेगा काउंटेबल, ठीक है। हम वहां भी नहीं जाएंगे, अभी हम वापस आएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जाननी है। लुक एट एक्सरसाइज 3। अच्छा, वर यू अ फसी ईटर? देयर वाज वन मोर पार्ट टू दैट क्वेश्चन। वर यू अ फसी ईटर? क्या आप एक फसी ईटर रहे हैं थे बचपन में? वर यू अ फसी ईटर? व्हाट इज अ फसी ईटर? लुक एट दैट चाइल्ड, द फोटो, द पिक्चर, look at that child, is he very happy with the food? So a fussy eater is like that, most times he is unhappy with his food, he is rarely happy with his food. Okay, it means a fussy eater likes a lot of things or doesn't like a lot of things, right? Likes very few things, a fussy eater. So when you were a child, were you a fussy eater? Did you give your mom a lot of headaches, tension? मेरा बच्चा क्या नहीं खाएगा, मेरा बच्चा क्या खाएगा, लाइक, एंड सम चिल्ड्रन गिव देम एनीथिंग दे विल ईट। घास दे दे, घास खा ले वो, यू नो, हड्डी दे, हड्डी चबा जाए, लाइक लाइक, एनीथिंग, बैंगन, हाँ एकदम कुछ भी, ठीक है। दलिद्दर, यू नो, some children are called because they eat a lot and they eat everything, जो मिल जाए खा जाते हैं, दलिद्दर टाइप। I was called Daliddar. You can understand whether I was a fussy eater or not. Was I a fussy eater, guys? Nah. My mom called me Daliddar. So clearly I was not a fussy eater. But my brother was a fussy eater when he was a young boy. He had always problems with the food. Huh? You are still a fussy eater. Why won't you be? After 3-4 sisters you were born, you were supposed to be fussy. Okay, fussy is an adjective. Do you realize it? सुनते के साथ महसूस हुआ था कि फसी एडजेक्टिव होगा, क्योंकि क्या बोले, ए फसी, तो मतलब तुम अपने आप को डिस्क्राइब ही करो ना, ईटर को डिस्क्राइब करो ना, ए फसी,
तो तीन इस तरह के तीन वर्ड्स वाले कॉम्बिनेशन जब भी आते हैं, ए एडजेक्टिव फिर नाउन आता है ना, ए टॉल बिल्डिंग, ए ग्रीन ट्री, ए गुड गर्ल, है ना। तो ए फसी ईटर, ईटर इज अ नाउन, समवन जो खाता है वो ईटर है, और जो नखरा करके खाता है अ फसी ईटर। ओके, अरहम, आर यू अ फसी ईटर? Well, I was not a fussy eater, but I think I have become a little fussy now. Maybe, or maybe I'm not. Look, if you really make something bad, then how can I eat it? Nah. Yeah, but otherwise, I'm not a fussy eater, I think. I eat almost everything. I don't say हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते. जो सामने रखा है, if it is tasty, I'll eat it, whatever it is. Okay? But if it is not tasty, आई नेवर से एज अ रूल कि हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, ऐसा कोई रूल नहीं. आई कैन ईट एवरीथिंग, बट इट शुड बी टेस्टी, दैट्स इट. सो हाउ कम आई एम फसी? आई एम नॉट फसी. अब आप सब्जी में तेल डाल दोगे बहुत ज्यादा, कहोगे खाओ, तो आई वुड नॉट ईट इट. इफ यू डोंट एड एनी ऑयल टू द सब्जी एंड यू से ईट इट, आई वोंट ईट इट. It has to be balanced, right? So I'm not a fussy eater, but I think I appreciate good taste. Hmm. तो देखो क्या है ना कि आप एलिमेंट्री लेवल पे हो, मुझे ऐसे रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है अपने आप को. एक वर्ड आता है कॉनसर, ठीक है. मैं आप बोलने वाला था, आई एम कॉनसर, फूड कॉनसर, ओके, लेकिन मैंने सोचा क्यों बोलूं, फिर मैंने बोला बोल देता हूँ. अब बोल के ये देखो, ये बता रहा हूँ कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था. तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हें तैयार रहना है लंबे समय के लिए पढ़ाई करने के लिए. अगर ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से सीखना है बिना प्रेशर लिए तो, और बाकी अगर अपने आप पे लोड लेना है कि सर ने नोट्स बनवा दिया हम लेके चले गए, तो ठीक है, फिर अलग बात है. इसमें क्या है, प्रेशर नहीं आता, आप सुनते जाते, दिमाग में बातें चली जाती, थोड़ा रिवीजन कर लो एक दो बार, और फिर ये इट विल बी योर्स. ओके, तो लेट्स लुक एट फसी ईटर्स. यू अंडरस्टैंड ना, फसी ईटर्स, राइट? So you have some fussy eaters in your family? Yeah. Your niece is a very big fussy eater, right? She's very fussy about her food. She is very fussy about her food. Okay. I have a cousin. He's very fussy about his food. My daughter is very fussy about her clothes. You know, one of my cousins, when he goes to the hairdresser, ऐसे नहीं काटना, ऐसे काटना, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा सा ये. He's so fussy about his haircut. You know, अब आप फंसी का एक मीनिंग भी समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा बहुत आ रहा होगा समझ में. जैसे मैं हिंदी नहीं बताया, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी कुछ तो पिक्चर बना है मेरे एग्जाम्पल से ना. तो ये पिक्चर नेचुरली उभरा बिकॉज ऑफ व्हाट आई सेड, यू कनेक्टेड इट विद द रियल वर्ल्ड. इसको कहते हैं स्लो तरीके से, इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट, कि थोड़ा थोड़ा करके मैं इसकी हिंदी बता दूं और आपको कहूं रट जाओ, तो ना आपके अंदर कोई समझ होगी. हाँ, आप इस वर्ड के बदले वो वाला वर्ड बोलते रहोगे हमेशा, उसमें समझ नहीं बनती. जैसे मैंने एग्जाम्पल देकर छोड़ दिया है दो तीन. आई हैव माई डॉटर इज वेरी फसी अबाउट हर क्लोथ्स. ओके, उसको कोई भी कपड़ा दो तुरंत पहन लेगी ना, कि ये ऐसे लग रहा है, वो वैसे लग रहा है, राइट? आई हैव नेवर बीन फसी अबाउट क्लोथ्स और एनीथिंग, Let's move on. Exercise 3 now. There are four sentences. You have to write is or are in those blank spaces. In those blanks, write is or are. आपको क्या लिखना है? Is लिखना है या तो are लिखना है. Complete the sentences with is or are. Do you have a pencil, beta?
Sentence number one, broccoli is good for you. Sentence number two, tomatoes are good for you. Why did we talk like this? अब थोड़ा सोचना है, दोनों उल्टा क्यों नहीं बोला हम लोगों ने? ब्रोकलीज आर गुड फॉर यू, टोमेटो इज गुड फॉर यू क्यों नहीं बोला हमने? तो जब हम अनकाउंटेबल चीजों के बारे में बात करेंगे, जनरल बात है ना कि भाई अच्छा है आपके लिए, कोई खास बात नहीं बोला जा रहा है, बस ऐसी एक बात बोली जा रही है जो सारे ब्रोकली पे अप्लाई कर सकते हैं। ब्रोकली इज गुड फॉर यू, ऐसा नहीं ये वाला ब्रोकली वो वाला ब्रोकली की बात हो रही। ब्रोकली इज, टमाटोज आर गुड फॉर यू, है ना? तो अब आप मुझे बताओ, अगर ऐसे आपको ये बात समझ में आ गई, आपको ऐसे ही बताना है पिक्चर क्यू, लुक एट द पिक्चर क्यू, आपको बताना है ये आपके लिए अच्छी चीज है। कैसे बोलोगे जो भी है पिक्चर क्यू में? एग्स आर राइट, एंड यू पे आ जाओ, यू। तो अगली बार कोई भी बात ऐसे किसी भी चीज के बारे में एक बात बोलनी होगी, नॉर्मल बात बोलनी होगी, जनरल बात बोलनी होगी, तो उसको सिंगुलर में बोलना है कि प्लूरल में बोलना है, इस किस बात पर डिपेंड करेगा? वो काउंटेबल है कि, जैसे ब्रोकली अनकाउंटेबल है, मिल्क अनकाउंटेबल है, तो दोनों के बारे में बोले मिल्क इज गुड फॉर यू, ब्रोकली। अच्छा चलो, मिल्क के बारे में कोई और बात बोल दो, गुड फॉर यू क्यों, कुछ और बात बोल दो, कोई ऐसे नॉर्मल बात बोल दो, मिल्क इज बेनिफिशियल फॉर अस, ठीक है? कोई और दूसरी बात बोल दो, मिल्क इज वाइट, मिल्क इज, मिल्क इज, मिल्क इज टेस्टी, ठीक है, मिल्क इज टेस्टी। ओके, नॉर्मल, इसको कहते हैं जनरल बात बोलना। क्या बोलना? जनरल बात बोलना। ये जो बोला है तुमने सारे मिल्क पे अप्लाई होता है। किसने कहा मिल्क इज टेस्टी? इसने छांट के नहीं बोला ये मिल्क वो मिल्क, मिल्क इज, वैसे ही मैंने कहा मिल्क इज वाइट, ये मिल्क वो मिल्क नहीं करा, बस मिल्क इज टेस्टी, मिल्क इज वाइट, इसको कहते हैं जनरल स्टेट। क्या कहते हैं? अब ऐसे ही जनरल स्टेटमेंट हम टमाटो, पिक्चर सी के बारे में देना चाहेंगे। पिक्चर सी, बोलो। टमाटोज आर, उसमें विटामिन ए होता है, बताओ कैसे बोलेंगे? टोमेटोज हैव, ओके, एनी प्रॉब्लम्स? तो आज से अब कोई भी जनरल स्टेटमेंट बोलते समय थोड़ा कंफ्यूजन भी आएगा। कल तक इग्नोरेंट थे तो कोई टेंशन नहीं होता था, ओवर कॉन्फिडेंट लोग फट 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 बोलते रहते गलत सलत, लेकिन अब थोड़े कॉन्शियस होकर सोचेंगे कि भाई ये काउंटेबल है कि, और उसके बाद में स्टेटमेंट देंगे। आपको बोलना है आर के बारे में कि हम इसको, हम ये खाते, ये चीज जो आर में है वो आप खाते हो। बोलो, आई ईट, आई ईट कैरेट्स, है ना? आपने ये तो नहीं कहा ये कैरेट वो कैरेट, बस आई ईट। एनी प्रॉब्लम्स? ये है। लेकिन किसी वजह से आप बोल दें यू के बारे में कि आप नहीं, ये नहीं करते हैं, यू नहीं, आपको नहीं चाहिए, आप नहीं करते, नहीं पसंद है आपको, कैसे बोलेंगे? आई डोंट ड्रिंक मिल्क। एनीबॉडी हु डजंट ड्रिंक मिल्क हियर? या अशफी, हुशाम, एंड इंजमाम हियर, you know, these three people don't drink milk, they don't like milk, right? And Zara loves milk, right Zara? And you drink milk every day? Not every day, okay. My daughter, yeah, my daughter does too. She also drinks milk every day, and she can't go to bed without drinking milk. नींद नहीं आएगी उसको, इवन इफ शी हैज ईटन चिकन ना, 10 बजे रात में चिकन खाई, वो वेट करेगी 11 साढ़े 11, मम्मी आप तो दे दो, तो भी जाएंगे वो सोने, नींद नहीं आती उसको। शी हैज गॉट दिस हैबिट, शी ड्रिंक्स मिल्क एवरी नाइट, ओके, बिफोर बेड। तो देखो अब तुम्हारे लिए चीजें आसान होती जा रही हैं, तो वो नाउन कैसा है उसके हिसाब से तुम जनरल स्टेटमेंट्स कॉन्फिडेंटली दे सकते। तो लेट्स टॉक अबाउट आइसक्रीम, डब्ल्यू। बोलो आइसक्रीम बहुत टेस्टी होता है, कैसे बोलेंगे? आइसक्रीम इज टेस्टी, अनकाउंटेबल नाउन है, आइसक्रीम मटेरियल है, ठीक है। आइसक्रीम, आइसक्रीम इज टेस्टी, आइसक्रीम इज डिलीशियस, आइसक्रीम इज डिलीशियस। लेकिन यही हमें अगर डिलीशियस ही बोलना है, लेकिन आइसक्रीम के बारे में नहीं, आई में जो लिखा बना है उसके बारे में बोलना है, तो कैसे बोलेंगे? बनानाज आर, हिंदी में क्या बोलेंगे? केला बहुत टेस्टी होता है, बनानाज आर डिलीशियस, बहुत टेस्टी होता है। डिलीशियस मीन्स वेरी टेस्टी, डिलीशियस मीन्स वेरी टेस्टी,
Bananas are delicious. Any problems? तो हिंदी कैसे बोलते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रूल हिंदी के बोलने, अंग्रेजों को हिंदी नहीं आती तो उनको नहीं पता आप कैसे बोलते हैं, तो वो साइड रख दे, उससे कोई कनेक्शन नहीं बनता है इस बात का। खाली ये जानना है कि ये नाउन्स कैसे हैं, इंग्लिश में वजह से ऐसे बोलना है। अब बताइए हिंदी से क्या लेना देना रहा। आप कभी ऐसे बोलते केले टेस्टी होते हैं, आप बोलते हैं केला बहुत अच्छा लगता है खाने में, ऐसा बोलते हैं आप? बोलिए इंग्लिश। बनानास आर टेस्टी, बनानास आर वेरी टेस्टी, हो गया। आपको ये परवाह नहीं करना पड़ेगा। अब अमरूद के बारे में कुछ बोलना चाहें हिंदी में, है ना, जनरल बात बोलना है, गुआवा ना बहुत 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 मजा, बहुत बढ़िया, पेट के लिए बहुत बढ़िया होता है भाई, कैसे बोलेंगे? गुआवाज आर वेरी गुड फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम, वेरी गुड, दे आर वेरी गुड फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम। यही बात गुआवा के जगह अगर हमें दही के बारे में बोलना है कि दही पेट के लिए बहुत अच्छा होता है भाई, तो योगर्ट इज वेरी गुड फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये डिसीजन कैसे हुआ? इसलिए कि हमें पता है गुआवा इज अ काउंटेबल नाउन एंड पता है योगर्ट इज एन अनकाउंटेबल। हाउ सिंपल एंड इजी, इजंट इट? आप बताओ मुझे। आई लव guavas, आई ईट guavas every day, but my brother doesn't eat guavas, and Ram, he eats mangoes, right? But his sister doesn't eat mangoes. किस गधे ने, बेवकूफ ने हमारे दिमाग में बात डाली थी कि राम ईट ए मैंगो बोलना है? क्यों बोलना है भाई? अभी तो नहीं बोल पा रहे हम लोग ऐसा, क्योंकि हमारी जो समझ बनी है, अगर हम समझ रहे हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल, तो ऐसे तो बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हमें बोलना है कि हम सुबह सुबह एक अमरूद खाते हैं, आई ईट ए गुआवा एवरी मॉर्निंग, आई ईट ए गुआवा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को बोलने में। वैसे ही राम ईट्स ए मैंगो एवरी डे, कोई टेंशन नहीं बोलने में। लेकिन ये बोलने के लिए कि राम आम खाता है, जनरल स्टेटमेंट है ये क्या है? जनरल स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट समझ गए ना? अमरूद हरा होता है, ये जनरल स्टेटमेंट है। अमरूद पेट के लिए अच्छा होता है, हमको अमरूद पसंद है, ये सब क्या है? जनरल स्टेटमेंट हो गया, राइट? बच्चों को अमरूद बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, चिल्ड्रन लव गॉबर्स, ओके। तो वैसे ही राम ईट्स, महसूस हो रहा है कि मेरी बात बोलने पर आप बोल रहे हो, ऐसा महसूस हो रहा होगा, नेचुरल लग रहा होगा, बोलना सही लग रहा होगा, फील हो रहा होगा। बोलिए राम, राम को दूध पसंद है, राम लव्स मिल्क, हर दिन पीता है, ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे, बिकॉज मिल्क है सही जगह पे अपने अनकाउंटेबल नाम। ये क्यों हम बोले भाई राम ईट्स ए मैंगो? और अगर आप अभी भी कुछ टीचर्स के पास ये सवाल उठाएंगे तो सबसे ज्यादा हंसी आएगी, इसलिए नहीं कि वो नहीं बोलेंगे अच्छा इस बारे में सोचेंगे तुम जो बोल रहे हो, उनका जवाब ओवर कॉन्फिडेंस। क्या बोलेंगे? अरे एक बार में क्यों नाम खाएगा रे? अरे यार एक बार में एक खाएगा, दो बार में दो खाएगा, ये कहाँ बात हो रहा है, इससे क्या लेना देना इस बात का है? तो आप एक बार में एक सिप लेते हो दूध का, तो फिर उसका भी चेंज करो, फिर कुछ बना लो, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। आई डोंट ड्रिंक मिल्क बोलते हैं सीधा सीधा। तो भाई राम ईट्स मैंगोज मतलब आम को ना, आम को ना, राम आम को ना नहीं बोलता है, राम ईट्स मैंगोज, राइट? कुछ लोग, माई डॉटर डजंट ईट मैंगोज, you know, if I come to your house and you guys put mangoes in front of us to eat, she will say no, I'm sorry, I don't eat mangoes. She doesn't like mangoes, she doesn't eat mangoes. Done. कितने साल राम ईट्स मैंगो हमारे दिमाग में बैठा हुआ था, बचपन से 5 6 6 साल से हम लोग ये सेंटेंस सीख जाते हैं, 8 7 साल में, और अभी हम सोचो अब 21 के हैं, 20 के हैं, 22 के हैं, 14 साल 15 साल किसी ने उस सेंटेंस को हटाने की जहमत नहीं समझी, और ना हमें ऐसी समझ बनी कि हम हटा सके। मैं बताऊं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, कुछ नहीं जानता मैं, ठीक है, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं आपको कि कोई चीज अजीब लगे इंग्लिश में तुरंत पता चल जाता है। कॉमन सेंस है, मतलब इतनी समझ बन जानी चाहिए आपके अंदर भी। कोई, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझे कोई बहुत बड़ा जॉब और ये वो नहीं मिल सकता मेरे नॉलेज से, ठीक है, लेकिन मैं जो जानता हूं इससे ये जरूर हो सकता है कि ये क्या बात है, राम इट्स अ मैंगो, ये मुझे समझ नहीं आया क्यों है, क्यों है ये लाइन राम इट्स अ मैंगो। जब आपके सामने कोई बोलेगा कि राम आम खाता है,
ठीक है, अच्छी बात। हालांकि आप में से कोई हिंदी तो ग्रामर से पढ़ा नहीं है। तो एक दिन मैंने एक बात करी थी कि राम एक आम खाता है कि राम आम खाता है, राम एक टीचर है कि राम टीचर है, दोनों में से कौन सही है? ठीक है। तो मेरे ख्याल से हम लोग दोनों ही बोलते रहते हैं। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, तो मैं जानता हूँ दोनों ही बातें बोलते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं पता इसमें से करेक्ट कौन है, किसी हिंदी टीचर से बात करनी पड़ेगी। ओके, बट yeah, I guess now you have no doubts about why Ram eats a mango is absolutely nonsensical. आप उसमें कुछ जोड़ दो, वो करेक्ट हो जाता है ना? क्या जोड़ दोगे? बिफोर डिनर, क्या हुआ इसका मतलब? राम डिनर करने से खाने से पहले एक आम खाता। राम eats a mango before dinner. Totally fine. Yeah. सोने से पहले राम eats a mango before going to bed. बट राम ईट्स अ मैंगो, खाली इतना आप छोड़ दोगे? इसका कुछ मतलब नहीं। हाँ, फिर अगर ये बताना चाहते हो कि राम आम को ना नहीं बोलता है, तो इसका इंग्लिश ये नहीं है। अगर वो हिंदी से एसोसिएट करना चाहते हो, तो ये इसका इंग्लिश तो नहीं हो सकता। इसका इंग्लिश होगा राम ईट्स मैंगोज। मैं इसकी कहानी बताऊं इस लाइन की। आज से कोई 10 साल पहले, 11 साल पहले, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये सब सिर्फ और सिर्फ फीलिंग की बात है। 11 साल पहले अचानक से मैं पढ़ा रहा था राम ईट्स मैंगो, मैं भी पढ़ा रहा था। टू बी ऑनेस्ट, आई वाज टीचिंग द सेम। ओके, I can't say that I was always like this. No, I learned what I learned from my teachers, और मैंने उसको पुश किया, क्योंकि समझ बनते बनते बनती है। ऐसी कोई चीज है तुम्हारे पास दिमाग में इंग्लिश के बारे में जो आज से 6 महीने पहले, 5 महीने पहले तक तुम्हें अजीब लगती थी, नहीं समझ में आता था, अभी थोड़ा बेहतर समझ में आता है? ऐसी कुछ चीजें अगर हैं तो उससे रिलेट करना कि मेरी भी समझ वैसे ही बढ़ी है। कि मुझे पहले बताया जाता था, मैं सुनता था और मैं मानता था और उसको रिपीट करता था। ठीक है, कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन समझ धीरे धीरे बनी, और 5 साल 4 साल पढ़ाने के बाद जाकर के मैंने क्वेश्चन करना शुरू किया इस बात को। ये राम ईट्स मैंगो क्यों पढ़ा रहे हैं हम? ये तो ऐसा साउंड नहीं करता जैसा हम बोलना चाह रहे हैं। क्योंकि और जगहों पे हम कुछ और बोल रहे हैं, धीरे धीरे मेरी समझ बन चुकी है। तब जाके हम इसको क्वेश्चन कर रहे हैं कि यहाँ तो हम एक ऐसे बोल रहे हैं। कहीं किसी जगह पे, जैसे किसी के सामने कहा, किसने कहा आई लव बनानास, आई ईट बनानास एवरी डे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो ये आई ईट ए बनाना खाली कैसे बोलेंगे हम? बनाना खाते हैं बोलने के लिए, ये मेरे को अजीब लगने लगा जब हम बोल ही नहीं रहे हो। तो राम ईट्स ए मैंगो क्यों हो रहा है खाली इसी जगह पे? तब मेरे को लगा कि यहाँ झोल है यार। देन आई टॉक टू ए लेडी कॉल्ड मार्गरेट, और उसने कहा कि इट्स स्ट्रेंज, एंड देन आई टॉक टू सारा, and she said we don't say that, we will if we, because she was learning Hindi and I had to explain it to them. मुझे उनको बताना था कि suppose there is a guy who comes to your house and you serve mangoes, okay, in front of him, and that person says sorry I don't, then what will he say? And they said I don't eat mangoes. That's what the person will say. I said, and if they say yes, then I eat mangoes. I said, yeah, right. And I said, I eat a mango. Then she said, I eat a mango. Again, next, what do you want to say? I eat a mango what? I eat a mango for breakfast. I eat a mango every day. Say something. I said, yeah, that's what I was thinking about. So this is how I suddenly realized कि यार ये तो ऐसे हो गया मामला। लेकिन जो लोग मेरे को ऐसा पढ़ाए थे, वह आज भी यही पढ़ा रहे हैं, तो उनका ग्रोथ नहीं है। ठीक है, हम अपने आप को ऐसे देखते हैं जाते हुए इंग्लिश में, और ऐसे ही जाते रहेंगे। हाँ, मेमोरी मेरी खराब होगी उम्र से। व्हेन आई एम 60 years old, I will have bad memory, I will forget words, but my understanding will be better than even now, because again, I'm trying to feel English and I ask you to do the same. इसी वजह से 2013 में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने कैसे बात करी? बेहोशी में इंग्लिश में बात करी थी, क्योंकि उस समय तक वो इंग्लिश कहाँ चला गया था? सबकॉन्शियस में मेरे। अब वो रूल्स पर बेस्ड बातें बोलने की हिंदी इंग्लिश नहीं कर रहा था मैं, इसलिए ऐसा हो चुका था। तो आप लोग इस बात को समझिएगा कि ज्यादातर कॉपी पेस्ट पढ़ाई है इंग्लिश के नाम पे। प्रॉब्लम कब आती है? जब कॉपी पेस्ट सक्सेसफुल हो रहा है तब तक कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कॉपी पेस्ट जब फेल होगा तो वहां पर पता भी नहीं चलेगा कि सही कैसे करें, सारा नॉलेज बेकार हो जाएगा, क्योंकि कहीं पर समझ नहीं बनाई थी, कॉपी पेस्ट था। ऐसा करने में हमें हिंदी से कोई लेना देना हो रहा है। हिंदी में वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस मिल जाएंगे। आप बोलेंगे, यूपी वाले से किसी से बोलिए, वो बोलेगा केले मेरे फेवरेट हैं, वो केला नहीं बोलेगा। बिहारी बोलेगा केला, और यूपी वाला बोलेगा
केले। दिल्ली वाला बोलेगा केले। ये वाला क्या कहते हैं, राजस्थान वाला बोलेगा केले। केले मुझे बहुत पसंद है, मुझे केले बहुत पसंद है, ऐसे बोलेगा ना। केला नहीं बोलेगा दोस्तों, याद रखना। संतरा के बारे में बुलवाओ किसी से, यहाँ वाला तो वही बोलेगा, बिहारी तो ऐसे ही बोलता है, हमको संतरा बहुत अच्छा लगता है। लेकिन राजस्थानी बोलेगा मुझे संतरे बहुत अच्छे लगते हैं। संतरा नहीं बोलेगा वो, मुझे संतरे बड़े अच्छे लगते हैं। तो यानी कि वो प्लूरल फॉर्म यूज कर रहा है, राइट। लेकिन उसी को बोलो अमरूद बोलने के लिए, वो फिर बोलेगा मुझे अमरूद बहुत, क्योंकि अमरूद का प्लूरल अमरूदे नहीं हो सकता हिंदी में। तो हिंदी के रूल्स अलग चल रहे हैं, हिंदी के रूल्स अलग चल रहे हैं इसी बात को बोलने के। इंग्लिश में बहुत सिंपल है कि भैया काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, उसे डिसाइड कर लो। हिंदी में तो इतने रूल्स आ जाएंगे ना। संतरा आ पे खत्म हुआ ना, केला आ पे खत्म हुआ, आकार पे खत्म हो रहा है, गौर करना। तो इसलिए बोलना पड़ेगा केले बहुत पसंद है, संतरे बहुत पसंद है। लेकिन आम और अमरूद दोनों आकार पे नहीं खत्म होता, कोई प्लूरल नहीं बोल पाएगा, बोलेगा मुझे आम, मुझे अमरूद बहुत पसंद है। तो ये देखो कि एक्स्ट्रा रूल हुआ कि नहीं हिंदी का। तुम्हें इंग्लिश में इस बारे में टेंशन नहीं लेना, बस एक चीज का टेंशन है, जिसके बारे में बात कर रहे हो वो काउंटेबल है या। यहाँ काउंटेबल भी है तो उसकी एंडिंग किधर से खत्म हो रही है, एंडिंग कहाँ पे है। अगर वो लीची के बारे में बोलेगा तो बोलेगा मुझे लीचियां बहुत पसंद है। हम लोग नहीं लीचियां बोलेंगे, हम लीची बोलेंगे, ठीक है। लेकिन कई लोग लीचियां बोलेंगे, ठीक है। अभी कोई बोले मुझे लड़के पसंद है, मुझे, हाँ एक लड़का है जिसको लड़कियों की तस्वीर दिखाई जा रही, बोला सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गर्ल्स, मुझे लड़के पसंद है। तो लड़के बोला उसने, प्लूरल, राइट। अगर वही किसी लड़की को लड़कों की तस्वीर दिखाया जाए, बोले सॉरी आई डोंट लाइक बॉयज, मुझे लड़कियां पसंद है, कैसे हुआ लड़कियां, लड़की ये क्यों नहीं हुआ जैसे लड़के हुआ, क्योंकि लड़की पे खत्म होता है ई कार पे, तो ई कार पे जो नाउन्स खत्म होते हैं उसका प्लूरल ऐसे होता है, इसलिए लीची का प्लूरल क्या होगा। और लीचियों भी होता है, लड़कियों भी होता है, एक और प्लूरल होता है, बोलो हाँ के ना। लड़कियां ने कहा कि लड़कियों ने कहा, लड़कियां ने कहा कि लड़कियों ने कहा। तो लड़की के दो प्लूरल हैं, लड़कियां और लड़कियों। बात समझ में आ रही है। तो हिंदी के ग्रामर रूल्स अलग चल रहे हैं अपने, उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। अगर मैंने अभी हाईलाइट करा तो शायद इस बारे में आपने पहली बार सोचा भी होगा। आप ऐसे सोचे थे पहले, जो बात अभी मैंने हिंदी में सुझवाई, आपने पहले सोचा था। एक तो आपकी मदर टंग है, फिर भी नहीं सोचा था। क्योंकि जब आप कोई नई भाषा सीखते हैं तो आपका दिमाग नेचुरली उधर चला जाता है अपनी मदर टंग को ऑब्जर्व करने पे। तो आप जब आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी तो आप हिंदी के अच्छे ज्ञान अपने आप रख लेंगे। हम ये नहीं कहते टेक्निकल, लेकिन आप ऑब्जर्व ज्यादा करेंगे हिंदी को। यू अंडरस्टैंड योर मदर टंग बेटर व्हेन यू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। तो इसलिए मैं हाईलाइट कर पाता हूँ इन सब बातों को आपके लिए। अब बताइए मुझे, क्या इसका हिंदी से कोई कनेक्शन है, कैसे बोलना है इस बात का। इट विल बी solely based on one simple rule: the noun that you're talking about is countable or uncountable. If it is countable, just use the plural form. आपको लड़की गर्ल के बारे में कुछ जनरल कमेंट देना है कि लड़की जो होती है वो बोल दीजिए कि थोड़ी मिस्चीवस होती हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, गर्ल इज मिस्चीवस ना, काउंटेबल है। आप बोलेंगे गर्ल्स आर मिस्चीवस। और यही है आपके बोलचाल की इंग्लिश। जब मैंने यहाँ बोलचाल लगाया है तो ध्यान रखिएगा, इसलिए नहीं बोलचाल लगाया है कि ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया, ये इसलिए बताया कि इसी बात को एकेडमिकली बोलने के लिए एक ऑप्शन और है जो मैंने पढ़ाया ग्रामर क्लास में, द गर्ल करके भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कुछ जगहों पे द के साथ सिंगुलर नाउन लगा के पूरी जाति मतलब पूरा ग्रुप के बारे में बताया जा सकता है। द एलिफेंट, ओके। तो इसका मतलब खाली एक एलिफेंट नहीं, कोई खास एलिफेंट नहीं, एलिफेंट्स कम्युनिटी। लेकिन बातचीत में द एलिफेंट बोलने की जगह सिर्फ क्या बोलेंगे, एलिफेंट्स, एलिफेंट्स, सिर्फ एलिफेंट्स, जैसे गुआवास, मैंगोज, एलिफेंट्स। तो काउंटेबल नाउन के बारे में जनरल कमेंट करना आसान हो गया हम लोग के। वी आर ऑल गोइंग टू मेक लॉट्स ऑफ जनरल कमेंट्स अबाउट लॉट्स ऑफ काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स। अब बोलना हाथी बड़ा होता है, बोलिए। हाथी धर स्थित नहीं, जमीन पर का सबसे बड़ा जानवर है।
Right. Any problems? Animals are the biggest, and elephants are the biggest animal on land, right? Okay. Any problems? आगे बढ़ें. अच्छा, आइसक्रीम दुकान में गए, चार लड़के बोले 4 आइसक्रीम दीजिएगा, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो वहां पर आइसक्रीम प्लूरल हो जाएगा फिर से वैसे ही, जैसे 4 चाय दीजिएगा. बात समझ में आ गई? 4 आइसक्रीम्स प्लीज. आप अकेले गए, एन आइसक्रीम प्लीज, एन, वो काउंटेबल हो गया, क्योंकि वो एक सर्टेन तरीके से आता है जिसको काउंट करा जा सकता है. ऐसा सोच सकते हैं प्रैक्टिकली. प्रैक्टिकली. और इस हिसाब से ये कॉमन नाउन रहेगा. लेकिन आइसक्रीम जो मटेरियल है, जो निकाल रहे होते हैं डब्बू से, ऐसे स्कूप करते हैं, स्कूप से, ठीक है. तो आपका शादी में हो तो ढेर सारा लेके बैठा होता है, ऐसे निकाल निकाल के दे रहा होता है, तो आप जाके वहां क्या बोलिएगा? एन आइसक्रीम प्लीज या सम आइसक्रीम प्लीज? सम आइसक्रीम प्लीज, राइट. हालांकि बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी जाके बोल सकते हैं 4 आइसक्रीम प्लीज. 4 लोग हैं तो 4 जगह निकाल के दे देगा. लेकिन आपको बोलना हमको आइसक्रीम बहुत पसंद है, आई लाइक आइसक्रीम. अनकाउंटेबल है वो. नॉर्मली क्या है, आप सोचिए ना, आइसक्रीम जैसा दिखता है वो क्या है? काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? क्रीम जो अंदर है, क्रीम कैसे काउंटेबल हो जाएगा? तो आई लाइक आइसक्रीम. हाँ, आइसक्रीम बहुत टेस्टी होता है. आइसक्रीम इज टेस्टी. तो ये डिसीजन किस चीज पे बेस्ड है? अब आपका दिमाग इस बारे में सोचने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड है कि नहीं, काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में? पहले उतना सोचते थे आप इंग्लिश बोलने से पहले, काउंटेबल अनकाउंटेबल? अब सोचेंगे, क्योंकि इसके बाद गैर आप गलत हो जाएंगे फट से, और जरा सा सोच लिए तो आप सही हो जाएंगे. तो इसी हिसाब से सिखा जाता है इंग्लिश. मुझे नहीं पता कि कितने ऐसे क्लास हैं जो ये बात जैसे मैंने अभी सिखाई है. कोई एक क्लास है, हाँ, जो मेरे बच्चे पढ़ा रहे होंगे तो बात अलग है, मेरे स्टूडेंट्स कुछ पढ़ा रहे हैं तो वो अच्छा ही पढ़ाते हैं बेचारे, ठीक है, दे ट्राई द बेस्ट. वो सीख के जाते हैं ऐसे. जैसे मैंने बताया, आप में से कल कोई क्लास खोले यहाँ या कहीं भी, तो ये बातों को आप ऐसे ही बताना पसंद करें, क्योंकि आपको फर्क पड़ा, तो आप चाहते हैं आपके बच्चों पे भी फर्क पड़े. या बट दोज हु डिडंट स्टडी विद मी, वो ट्रेडिशनल ग्रामर क्लासेस पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, उनको ये सब नहीं पता चलता है लंबे लंबे समय के बाद. I respect all those people who taught me. I have tremendous respect for them. But I have one complaint. Why don't you learn and grow? Why did you stop learning? Family is important. Earning money for family is important. But why can't you give a little bit of time to learning? You know, of course, I'm not financially very, very successful. I don't have hundreds of students sitting in my class. I'm not earning lakhs of rupees a month, right? I would like to, but not at the cost of my own learning. Who is a fussy eater? Next page. Count and uncount nouns. Duncan and Nick are students. Duncan and Nick are students. Duncan and Nick are students. Listen to their conversation. Are you ready? Yes. Listen. 8.2. Tape script 8.2. Who's a fussy eater? Oh, good. We have some tomatoes. Sorry, Nick. I don't like them. Come on, Duncan. Tomatoes are good for you. I didn't like them much when I was a child, but I love them now. I didn't like a lot of things when I was a kid. Ah, you were a fussy eater. What didn't you like? I didn't like any green vegetables. Did you like any vegetables at all? Only potatoes. I loved chips. What about fruit? Did you like fruit? I liked some fruit, but not all. I didn't like bananas. I liked fruit juice. I drank a lot of apple juice. And now you drink beer and wine. Yeah, and coffee. But I didn't like coffee or tea when I was a kid. So, what were your favourite foods?
I liked ice cream, chocolate, crisps, biscuits, especially chocolate biscuits. I liked all the usual things kids like. All the unhealthy things. I like pasta too. Pasta with tomato sauce. Oh, I love that. Tomato sauce? But you don't like tomatoes. Tomato sauce is different. Hey, let's not eat in tonight. Let's go out to Romano's. Romano's. A great idea. It's my favourite Italian restaurant. Got it. Tape script 8.2. Who is the fussy eater? Duncan or Nick? Duncan is the fussy eater. Okay. So I'm going to share this audio with you. Listen to it multiple times. Try to understand the fun conversation they're having. It's a fun conversation. Two friends are talking about their childhood and childhood eating habits. अगर इसको कोई सुनने में enjoy नहीं करेगा तो फिर मैं कहूँगा उसको इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, या तो अभी बहुत नीचे लेवल पे जहां इसको एकदम पल्ले नहीं पड़ रहा, लेकिन जिसको समझ में आ जा रही बात और वो एंजॉय ना करे इस कॉन्वर्सेशन को, तो फिर मैं समझता हूँ उस इंसान को इंग्लिश सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस तरीके से दोनों कैरेक्टर डालते हैं अपने आवाज में, बातों में, देखते ना, ये बोरिंग तरीके से बोली गई बातें नहीं है। देयर इज फन देयर। ओके, तो प्लीज एंजॉय दिस, लिसन टू इट। इफ पॉसिबल सुनने के बाद, कई बार सुनने के बाद, इफ पॉसिबल राइट द ऑडियो स्क्रिप्ट। ऑडियो स्क्रिप्ट। I will see you guys tomorrow. Bye, sir. Bye bye, Atif. Bye, sir.